Assalamu alaikum students, welcome back to the classes. I'm Fariha Manzoor, your English teacher. So these classes are going to be different definitely from the previous ones जिनके आप आदी थे, जिनके used to थे. These are the online classes. आज 15th June है, so from today पंजाब में कॉलेजेस ने गवर्नमेंट कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हैं. आज हमारा भी इसी तरह फर्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट लेसन होगा. But before we move on to our first lesson, I want you to know about the books that we are going to study in this year. हमारे पास basically two books हैं इस year में. One contains English essays, जो historical भी हैं, short and long essays हैं, and then the other one is a small novel जिसे हम novelette बोलते हैं, and that is about the life of a person known as Mr. Chips. उस novelette का title है Goodbye Mr. Chips. So हम लोगों को ये two books पढ़नी होंगी. इस जो आज हम book start ले रहे हैं इसके अंदर हमने essays हैं, हमारे पास essays हैं और हम इस तरह से करेंगे कि interchangeably पढ़ेंगे. कभी हम essays touch करेंगे, कभी हम will go to Mr. Chips ताकि हम लोग हर book को, हर तरह के genre को साथ लेके चल सकें and उसको enjoy करें. So today is our first lesson and let's move on to our first lesson. Okay, so let's guess. मैं pictures आप लोगों के सामने करूँगी, कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को pictures and let's guess कि ये pictures से हमें देखना है कि हमारा next lesson, हमारा first lesson जो है वो किस बारे में है. So you see in the first picture we have like a solar system. In the second one we have the sun, part sun, और साथ हमारे पास दिखा रही हैं हमें अर्थ. तो definitely the lesson is going to be about something that is in the universe, that's in the solar system. It can be about the sun and the earth. So देखते हैं हमारा first lesson है क्या. So the first lesson is about the dying sun and it's written by Sir James Jeans. So let's see. So in this lesson you'll learn about the author Sir James Jeans. उनका हम थोड़ा सा introduction पढ़ेंगे, फिर हम introduction पढ़ेंगे, the general introduction about our essay, current essay, The Dying Sun. उसके बाद हम content of the essay पे आ जाएंगे जिसके अंदर हमें author बताते हैं size of the earth का, उसको compare करते हैं बाकी stars के साथ and उसको compare करते हैं, उसकी presence को compare करते हैं universe की vastness के साथ. इसके बाद हम लोगों को सर जेम्स जीन्स बताते हैं यूनिवर्स की वास्टनेस के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दो स्टार्स कितने टाइम में कभी दोबारा मिल सकते हैं, एक दफा मिलने के बाद ये मिल सकते हैं. सो the fifth point जो हम इसमें पढ़ेंगे that is about how our earth came into existence. So there's a very famous theory, Big Bang theory. सर जेम्स जीन्स उस theory के बारे में बात करते हैं, ठीक है. इधर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई. he is not very sure, he is not like making conclusions. इस चैप्टर में हमें बिल्कुल नहीं ऐसे कह रहे कि हुआ. he is not so strong about his opinions. वो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है. ही इज मेकिंग assumptions जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट द अनफेमिलियर वर्ड्स. जो टेक्स्ट हम आज स्टडी करेंगे, जो टेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे, उसके अंदर कौन से न्यू ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लर्न कर चुके हैं. मैं एक्सप्लेन करूंगी बट आपको आफ्टर द लेसन व्हेन यू आर फिनिश्ड विद दिस लेक्चर आपने आराम से उनको अपने घर में डिक्शनरी ओपन करके उससे उन वर्ड्स को निकाल के देखना है. Words भी हैं and expressions भी हैं. So let's move on to the first point and let's study about the author Sir James Jeans. Sir James Jeans का full name है Sir James Hopwood Jeans. So Sir James Jeans, he was an English physicist, astronomer and mathematician. इनकी बहुत सी contributions हैं इन तीनों fields में, but particularly he has major contributions in physics and astronomy. और इन्होंने बहुत सी books लिखी हैं related to relativity, the concept of relativity and astronomy.
or he is well known for his books written related to astronomy. Also he was the first person जिन्होंने propose किया कि universe के अंदर, हमारी कायनात के अंदर matter जो है that is constantly being created. So it was his theory. So इस slide में we'll discuss the background of this essay. एक जनरल सा ओवरव्यू होगा इस ऐसे का, मगर बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पार्ट मैं आप लोगों से इस ऐसे का टाइटल द डाइंग सन को डिस्कस करना चाहती हूँ. व्हाट डज इट सजेस्ट? तो पिछले दिनों कुछ दिन हुए मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल सन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इट्स डेथ. आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सन है वो अपनी डेथ के करीब जा रहा है. What happens? Stars are born, they live, they spend their time and then they die. इसी तरह सन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है. बट बिकॉज जो इसके अंदर गैसेस हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो इसके अंदर गैसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं. सो सन इज ऑल्सो गोइंग नियर टू हिज डेथ. मगर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वेरी सून. बहुत जल्दी नहीं होगा. इट विल टेक, it may take 7 to 8 billion years before it dies completely. So the dying sun suggests this concept. अब हम चलते हैं अपने ऐसे की तरफ. सबसे पहले ऐसे हमारे पास जो द डाइंग सन है ये एक्सप्लोरेटरी ऐसे है. इसकी टाइप जो है एक्सप्लोरेटरी ऐसे है. नाउ व्हाट इज एन एक्सप्लोरेटरी ऐसे? An exploratory essay is a short work of non-fiction. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि फिक्शन नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये नॉन फिक्शन है. इट्स अबाउट फैक्ट्स in which a writer examines an idea or experience. अब इस short work of non-fiction में, इस ऐसे में क्या होता है? राइटर किसी भी आइडिया को एग्जामिन कर रहा है. जिस तरह से इस ऐसे में राइटर जो है वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे वो इसको, इसके पॉइंट्स को हमें इन्फॉर्म कर रहा है विदाउट necessarily attempting to back up a claim. अब इस एक्सप्लोरेटरी ऐसे का जो एक बहुत जरूरी पॉइंट है वो ये है कि इसमें राइटर अपना कोई पॉइंट नहीं बता रहा. वो कभी भी एक पॉइंट को के लिए स्ट्रांगली नहीं बोलेगा. वो आपके सामने पूरी सिचुएशन रखता है, ठीक है? सो इट द राइटर इज ओनली मेकिंग assumptions. वो कोई कंफ्यूजन नहीं बताएगा. जैसे मैंने पीछे एक स्लाइड में भी बताया था आपको कि राइटर किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा, वो आपको सारी सिचुएशन बता रहा है. सो इट ऑल्सो लाइक दिस ऐसे हाईलाइट्स राइटर्स व्यूज. मैंने जैसा कहा कि वो अपने व्यू बता रहा है, उसमें जो कुछ उसका नॉलेज है वो उसके मुताबिक बात कर रहा है. और आप ऐसे में लैंग्वेज देखेंगे कि लैंग्वेज के भी आपको शो करेगी कि राइटर अब बता रहा है कि वो समझता क्या है कि क्या हो सकता है. सो ही इज ओनली मेकिंग assumptions. The essay highlights writers' views about the universe. यूनिवर्स के बारे में अपने व्यूज बताएगा, कैसे अर्थ क्रिएट हुई और किस तरह से लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई. इसके साथ साथ वो ये भी बात करेगा कि बाकी प्लैनेट्स और बाकी स्टार्स में पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं है, और अगर है तो क्या कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से लाइफ वहां पे बन सकती है. और थर्ड पॉइंट ये है जो मैंने अभी बात कही कि in this essay the writer does not make any strong conclusion, rather focuses on your assumptions or just gives you his points. So अब हम चलते हैं The Dying Sun. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. जी, तो पहला पैराग्राफ हम ब्रेक करते हैं. पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं a few stars are known which are hardly bigger than the earth. अब यहाँ पे हमें इस पार्ट में अर्थ के साथ कंपेयर किया जा रहा है कुछ स्टार्स को. इससे अगला पार्ट भी पढ़ते हैं. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. अब इन दोनों
पार्ट्स में, सेंटेंस के इन 2 पार्ट्स में क्या बात बताई जा रही है? हमें ये बताया जा रहा है कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में देयर आर सो मेनी स्टार्स। अब जो वो स्टार्स हैं, कुछ जो स्टार्स हैं वो बहुत छोटे हैं और कुछ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह से लगवाया जा रहा है? हमें इसका अंदाज़ा लगवाया जा रहा है अर्थ को स्टैंडर्ड बना के। अर्थ को इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया और कह रही हैं कि काफ़ी स्टार्स ऐसे हैं जो कि इस अर्थ से भी बहुत छोटे हैं। ठीक है? हार्डली बिगर देन द अर्थ, मतलब मुश्किल से आप कहोगे कि वो अर्थ से बड़े हैं। और फिर बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो कि इतने इमेंस, इतने ह्यूज, इतने बिग हैं कि उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ भी डालो, हजारों लाखों हमारी जमीन के साइज के प्लैनेट्स डालते जाओ, उसके बावजूद उस स्टार के अंदर और भी बहुत सा रूम होगा, मीन्स बहुत सी जगह होगी। लीव रूम टू स्पेयर का मतलब ये है कि उसमें फिर भी बहुत सी जगह बच के रह जाएगी। हम अगले पार्ट पे चलते हैं। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. और फिर हम ये भी बता रहे हैं कि इतने बड़े और इतने छोटे स्टार्स तो हैं, ये तो हमें पता चल गया। साथ ही में हम ये बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स में आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्टार्स मिल जाते हैं बहुत आराम से, जो कि इतने बड़े होंगे कि उनके अंदर आप मिलियंस ऑफ मिलियंस अर्थ डाल सकते हो। ठीक हो गया? मतलब लाखों में अर्थ डाल सकते हो, वो इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज हैं। तो इमेंस का मतलब है ह्यूज। Next sentence says, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमें ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो यूनिवर्स है उसमें नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, इसका अंदाजा हमें लगवा रहे हैं। और वो कैसे लगवा रहे हैं ऑथर अंदाजा? इस तरह से कि पूरी दुनिया ले लो, उसके साहिलों पे जितनी रेत है, सारी रेत के एक एक जर्रा गिनो बैठ के। अगर आप लोग गिनोगे तो आप लोग नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट है। ठीक है? वी कैन नॉट काउंट ऑल द ग्रेन्स ऑफ सैंड। ग्रेन होता है जर्रा, ग्रेन्स ऑफ सैंड जो सैंड के, रेत के जर्रे हैं वो हैं। तो पूरी दुनिया में जितने भी सी शोर्स हैं उनके, उन पे जितने ग्रेन्स ऑफ सैंड है, रेत के जर्रे हैं, वो सब मिला लो तो कहीं लगभग उतने स्टार्स का सिर्फ एक अंदाजा दे रहे, उतने स्टार्स हमारी कायनात में हैं। तब आप अंदाजा लगा लो कि कायनात कितनी वास्ट है और उसके अंदर कितनी वैरायटी है। वैरायटी इस तरह से होगी, छोटे बड़े स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक हो गया? और वास्ट होने का कैसे हमें पता चल गया? कि उसके अंदर इतने ज्यादा स्टार्स हैं जितने हमारे सी शोर्स पे रेत के जर्रे हैं। एंड दैट इज इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट दैम। इनफाइनाइट मीन्स जिसे काउंट ना किया जा सके। ठीक है? वो मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन। सो such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. अगर जब हम ये लाइन देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारा होम क्या है? हमारा होम स्पेस के अंदर क्या है भाई? दुनिया है ना? ठीक है? अर्थ है। तो कहना कि ये हमारी अर्थ का साइज है, इतना छोटा सा हमारा अर्थ है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट? उस सब चीजों के जो कि इस कायनात में है, इस कायनात की वास्टनेस से, इस कायनात के अंदर जो स्टार्स हैं उन सब से हम जब कंपेयर करते हैं तो इतनी छोटी सी हमारी दुनिया है। सो यहाँ पे कंपैरिजन से हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी दुनिया का साइज क्या है और हमारा साइज फिर अगर हम देखें अंदर क्या है। हम तो दुनिया भी नहीं पूरी देख सकते ना, तो हम लोग की एक हमारी लिटिलनेस बताई जा रही है, हमारी दुनिया की लिटिलनेस बताई जा रही है। अब हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor
Excuse me. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन आइडिया है इस पैराग्राफ में वो क्या है? दैट इज अबाउट द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स. पहले वास्टनेस के बारे में बात हुई, लेकिन पहले ज्यादा हम लोग नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में कर रहे थे, ठीक है, और साइज ऑफ द स्टार के बारे में. तो अब इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या बात करनी है? बात करनी है वास्टनेस के बारे में. वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स. नाउ व्हाट इज मेंट बाय वास्ट, बीइंग वास्ट और वास्टनेस? वास्टनेस मींस किसी भी चीज का वसी होना. तो कहते हैं यहाँ पे हमें ऑथर कह रही हैं कि जिन स्टार्स का हमने पहले जिक्र किया, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, वो क्या कर रहे हैं स्पेस में? दे आर वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग का मतलब इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है. A few form groups with journey in company. अब कुछ स्टार्स हैं भाई, वो ग्रुप में आ गए, वो जर्नी जो करेंगे कंपनी में करेंगे. किन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ग्रुप्स में बनते हैं, क्या है? दैट इज अनदर साइंस बिहाइंड इट. हम लोग ये जान रहे हैं इस वक्त कि द जर्नी, सम ऑफ देम जर्नी इन कंपनी. जर्नी का मतलब होता है सफर करना. सो कुछ ने ग्रुप्स बना लिए और इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन. लेकिन ज्यादातर जो है वो अकेले चलते रहते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमें कहते हैं एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस. और वो यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में ट्रेवल करें, वो इतनी इमेंस है. इमेंस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एंड इट मेंट ह्यूज होना, किसी चीज का बहुत बड़ा होना. किसी चीज का इमेंस होना मींस वास्ट होना, ठीक है. पहले हमने पढ़ा था इमेंस स्टार, मतलब इमेंस स्टार का मतलब बहुत बड़े स्टार. अब यूनिवर्स की जब इमेंस होने की बात है तो मींस वो बहुत वसी है. यहाँ पे इमेंस दूसरे सेंस में यूज हुआ. तो कहता है कि वो ट्रैवल करते हैं यूनिवर्स से जो कि बहुत इमेंस है. एंड हमें कैसे पता चलता है कि इतनी वसी है? कि इट इज वेरी वेरी रेयर. मतलब अब फ्रीक्वेंसी बता रहे कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम होगा ऐसा, कि ऐसा इवेंट बहुत कम होगा कि कभी एक स्टार कभी भी दूसरे के करीब भी आए. ठीक है, मतलब बहुत इनफ्रीक्वेंट इवेंट होता है. सो फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वोयेज इन कंप्लीट लोनलीनेस. मींस जब कोई स्टार मूव कर रहा है तो आपको दूर दूर तक और कोई स्टार नजर नहीं आएगा. वो अपना जब सफर तय कर रहा है तो वो बिल्कुल कंप्लीट अकेला होके कर रहा है. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन. कभी आप लोग मूवीज देखते होगे, कार्टून्स देखते होगे, तो उसमें अक्सर बात ऐसे सीन्स आ जाते हैं जिसमें आपको शो कर रहे होते हैं कि वास्ट ओशन है, बड़ा सा ओशन होता है और उसमें एक शिप होती है. नाउ जस्ट इमेजिन कि इसी तरह वास्ट यूनिवर्स है, दूर दूर तक कुछ नहीं है और सिर्फ एक स्टार बीच में घूम रहा है. सो ये बताने की यहाँ पे कोशिश हो रही कि हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि स्टार्स जब घूम रहे होते हैं इस यूनिवर्स में तो बहुत मुश्किल है कि कभी वो किसी दूसरे स्टार के करीब आ सके. इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्ड. अब कह रहे हैं कि जो हमने ये स्केल बनाया है इसके मुताबिक अगर स्टार्स जो हैं शिप हैं, जिसमें स्टार्स को उन्होंने कहा है कि वो शिप से उनको उन्होंने कंपेयर किया है, उनको तशबीह दी है, तो वो कहते हैं कि अगर स्टार्स शिप हैं, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. Means एक एवरेज शिप जो होगी, मतलब एवरेज स्टार जो होगा, वो मिलियन माइल्स दूर है. मिलियन मीन्स 10 लाख. 10 लाख माइल्स तकरीबन कर लो, उससे भी ज्यादा वो दूसरी शिप से दूर है. इसका मतलब ये कि एक स्टार दूसरे स्टार से लाखों माइल्स का डिस्टेंस रखता है, उससे भी ज्यादा का रखता है. ठीक है. From this it is easy to understand why a star seldom finds anywhere near it. इस स्केल मॉडल से हमें आराम से पता चल सकता है कि क्यों एक स्टार जो है वो बहुत ही कहीं कम होगा कि उसे दूसरा कभी अपने करीब मिल जाए. इसमें हम लोगों ने वॉन्डरिंग का एक वर्ड देखा है और एक वॉयज का देखा है. वेरी वेरी रेयर जो है वर्ड, इट शोज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं. उससे पहले मैं एक दफ़ा इन दोनों को दोबारा रीड करूंगी ताकि अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन एरर है आप लोग गौर से सुने. आप लोग कोई भी प्रोनाउंसिएशन अपनी देखना चाहते हैं किस तरह से कोई वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, सो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them
are so large that hundreds of thousands of Earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there, we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1 million miles from its nearest neighbor. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. जी तो पैराग्राफ 3 हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे we'll read and then we'll do the explanation. इसमें मैं छोटा छोटा करके रीड करूंगी एक साथ एंड पे रीड करूंगी so we believe however that some 2000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. तो कहते हैं कि कहीं हमें ऐसा लगता है मतलब साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि कहीं लाखों साल पहले ये रेयर इवेंट मतलब जो ना होने के बराबर इवेंट है बहुत कम होता है ये इवेंट हुआ और क्या हुआ कि एक और स्टार था इट वॉज वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस इधर उधर घूम रहा होगा भाई वो जो है वो इट हैपन टू कम नियर द सन वो सूरज के करीब आ गया किसी तरह से Here, what happened? Just as the sun and moon raise tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. तो जैसे सन और मून का इफेक्ट होता है हमारे ओशंस के ऊपर और हमारे पानी में टाइड्स बनती हैं वेव्स बनती हैं बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट हुआ होगा सर जेम्स चीन्स को लगता है कि ऐसा ही इफेक्ट हुआ होगा उस स्टार का सन की सरफेस के ऊपर but they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन ये जो टाइड्स हमारे ये टाइड्स जो सन की सरफेस पे बनी ये बहुत डिफरेंट होंगी उन टाइड्स से जो कि छोटा सा चांद मतलब छोटा एज कंपेयर टू दैट स्टार कि मतलब चांद है ये बहुत छोटी वेव्स बहुत छोटी टाइड्स को रेस करता है हमारे ओशंस में लेकिन सर जेम्स जीन्स के अकॉर्डिंगली जो सन की सरफेस पे टाइड बनी वो बहुत बड़ी बनी So he says an immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. Means एक जगह पे टाइड नहीं बनी होगी सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि भाई एक जगह पे टाइड नहीं बनी होगी वो टाइड रेज हुई होगी एंड देन वो पूरी सरफेस पे ट्रैवल की होगी पूरी सरफेस से गुजरी होगी एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट और एंड पे क्या हुआ होगा इतना बड़ा माउंटेन बन गया होगा कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते सन की सरफेस पे अब आप लोग इस तरह से इमेजिन करें एक छोटा स्टार है एक बड़ा स्टार है जो कि हमारा सन है अब छोटा स्टार उसके करीब आया है और उसने उसके अंदर वेव्स डाली हैं और वो इतनी बड़ी हुई हैं कि वो वी कांट इवन इमेजिन वो एक माउंटेन की तरह जो टाइड्स हैं वो बन गई हैं ठीक है एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन अब क्या हुआ स्टार फर्स्ट स्टार जो आया था छोटे वाला स्टार उसने आके उसके सरफेस पे टाइड्स रेस कर दी अब रेस करने के बाद ही इज गोइंग अवे अब जब वो इट इज गोइंग अवे नॉट ही सॉरी इट इज गोइंग अवे सो जब वो दूर जा रहा है उसका जो टाइडल पुल था ठीक है जो अट्रैक्शन थी उधर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी ठीक हो गया it had become so powerful that this mountain was torn to pieces अब वो दूर जा रहा है ठीक है और वो जो माउंटेन है उसका पुल जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है सही है अब वो पुल इतना स्ट्रांग हो गया कि एक हद तक तो उसमें जितनी लचक थी फाइन लेकिन जब वो लचक का पॉइंट आगे चला गया सो द माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसेस वो माउंटेन जो था टुकड़ों में टूट गया बिखर गया एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस और क्या हुआ कि स्पेस में छोटे 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 पार्ट्स उसने अपने
फैला दिए, लाइक टूटा तो टूट के इधर उधर छोटे छोटे पार्ट्स जो थे वो घूमने लगे स्पेस में. These small pieces have been going round the sun ever since. अब हुआ क्या कि जो ये छोटे छोटे पीसेस टूट के इधर उधर चले गए, वो तब से उस वाक़ये के बाद से आज तक सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. They are the planets great and small, of which our Earth is one. अब सन के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं और वो क्या है, वो प्लैनेट्स हैं, वो सब छोटे बड़े प्लैनेट्स हैं और उनमें से एक हमारी अर्थ है. आज हमने ये 3 पार्ट्स किए हैं जिनका मैंने डिस्कस किया था. सबसे पहले हमने स्टार्स के साइज के बारे में बात की, दुनिया की वास्टनेस के बारे में बात की, स्टार्स के नंबर के बारे में बात की फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ में हमने बात की यूनिवर्स की वास्टनेस के बारे में. थर्ड पैराग्राफ में हमने बात की अर्थ और प्लैनेट्स किस तरह से दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. यहाँ पे हमारा आज का लेसन एंड होता है और हमने इन 3 पैराग्राफ्स में कुछ वोकैबुलरी पढ़ी है जिसको मैंने अगली स्लाइड. मैंने अनफेमिलियर वर्ड्स की हेडिंग के साथ कुछ वर्ड्स शेयर किए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट में अंडरलाइन कर दिए थे विद ऑरेंज कलर्ड मार्कर. सो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं वो एक दफ़ा टेक्स्ट में. बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ घर में डिक्शनरी ओपन करें और इनके मीनिंग्स निकालें. बेस्ट वे टू मेमोराइज द वर्ड्स or the expression, that is the first one. The best way to memorize all of this is कि आप इनको sentences में use करो. ठीक है, जब आप sentences में use करोगे आपकी language practice हो जाएगी. So it's really good and you won't forget it. So do this, practice it. और इसके साथ साथ आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा, आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा. बट स्टिल इफ देयर इज एनी पॉइंट जो कि आपको लगता है आपको क्लियर नहीं हुआ या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी और आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चन. सो आप लोग काइंडली इसको गौर से सुने एंड अपना ख्याल रखें खूब. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आप से मिलेंगे, लेकिन तब तक आप अपना खूब ख्याल, अपने आसपास सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें. Stay strong. This is one of the challenging times, but inshallah staying strong will help us and will help us get out of it. So till our next class, see you and take care. Allah Hafiz.